Yes, good morning to all, Morning, sir. and welcome to the IB class. So, yesterday we were sharing on that few points with regard to the communication attitudes. Clear? So, before we start the class, uh, first we will go through the attendance. I request everyone to switch on your cameras. Yes. First is from 12A. Anyone from 12A? No one. 12B. Shriya. Bhavya. Amnat. Yes. From 12D, Priyanshi. Then we have Vanshika. And from 12E, no one is there. 12F. Jasmine. Muskan. And so yesterday your seniors result is out. Clear. And you should also get ready because uh, their class actually, their session went very long from last year February to this, you can say, up to July. So very long session it was. Yeah, so this time, due to this COVID effect, now you will be tested on the MCQ grounds. Clear? So be prepared for that. ठीक है? So जिसका concept अच्छा होगा, so he will be scoring good. इसमें there will be huge variation in marks also. So that was not the case in last this year batch. So आप लोगों के केस में जो बिल्कुल डिफरेंट नो यू विल नेवर हैव फाउंड दैट कि सीबीएसई ने अभी तक कोई भी ग्रेड 12 का एग्जाम अभी तक सीबीएसई ने कोई एमसीक्यू बेस्ड कंडक्ट नहीं किया. सो दिस विल बी फर्स्ट टाइम टर्म वन बेस्ड ऑन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट विल बी. ओके, सो ये जो चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन में, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू कोविड, वट एवर द चेंजेस आर कमिंग इन द एजुकेशन सिनेरियो, maybe in different fields they may be coming, but we are more concerned with the education. तो कोई बता सकते हैं इसको हम बोलेंगे क्या? What we will say to this one? Due to the पहले आपके पेरेंट्स या 2 साल पहले कोई थोड़ी लगाता था ऑनलाइन क्लासेस, ऐसे कोई भी नहीं लगाता था ऑनलाइन क्लास. So how we will basically elaborate this scenario? एक आपने यस मुस्कान 12. Sir, online era of education. Yes, online era. So that's a new era. So basically इस तरह के किसी भी सिनेरियो को हम बोलते हैं डिसरप्शन. Clear? When the normal working is now unable to perform, so we are basically have a disruption. जैसे जैसे इससे पहले कोई आप डिसरप्शन की आप एग्जांपल दे सकते हो? Any other example before COVID that the whole country faced any disruption? Yes, Shriya. So when demonetization occurred. Yes, yes. So demonetization से भी that was also a big disruption because now people were out of cash, so it was difficult to basically go through this transactions. Clear? क्योंकि 100 तक की सारे नोट जो थे they were you can use them
beyond 100, now all the 500 and 1000 rupees were basically now sort of a you have to deposit in the banks. तो ये भी पता चल जाएगा बैंक को आपके पास पैसे कितने हैं. Clear? Or that was a major disruption. Why we say that demonetization is a disruption? Why is it so? So because normal working of the people was disturbed, they couldn't use, as you have said, that they couldn't use 500 and 1000 rupee note. So they had to somehow manage with 100 rupee note. And also the big drawback of our economy was that most of our economy was running on cash. Most of our economy was running on cash. That's why we were finding the difficulty. अगर इतने टूल्स पेटीएम वगैरह उस टाइम पे होते तो किसी को डिफिकल्टी नहीं आनी थी. आज अगर डिमोनेटाइजेशन हो जाए तो इतना इफेक्ट नहीं होगा. हर किसी को पता है स्कूल की फीस कैसे देनी है. स्कूल की फीस पेटीएम से दे दो, बैंक से दे दो, कहीं से भी दे दो. क्लियर? But at that time, no, that was a big, basically sort of a disruption was there. So now you see in India, like presently people are switched to more and more people are switching to the online transactions. Clear? So अगर ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे हम जाते हैं तो इसका बेनिफिट है कोई या कैश इकोनॉमी में ज्यादा बेनिफिट है? Using cash is more beneficial or using the online transactions is more beneficial? Anyone? देखो अगर तो हम हर जगह कैश का यूज करते हैं तो उसका एक मेन पॉइंट है कि देखो पहले एटीएम के बाहर कितना रश रहता था. ठीक है, हर लोग, क्योंकि अब तो ज्यादा लोग एटीएम से पैसे निकलवाते हैं. पीपल आर नॉट मूविंग टू द बैंक्स फॉर विड्रॉल. So more and more people are going to the ATM machines for withdrawal of money. So due to this online transaction, a lot of rush has reduced on the from the ATM machines. और बहुत सारी अगर आप देखोगे तो there was a data released a few months back that in India most of the काफी ज्यादा ATM जो है, मैंने तो नहीं वैसे ऑब्जर्व किया, but they said that a lot of ATMs have closed due to their less use and reduced use. Clear? So that is how we analyze it. Now coming back to the disruption that we are going through is the online teaching. So yesterday we have focused last time on the communication etiquettes, that when we are communicating through email, text messages, instant message, or talking on phone, audio, video conferencing, and posting on any form or social networking sites. So what communication etiquettes we have to follow? We have to be precise, we have to be polite, clear, be credible, respect the data limits also. Nowadays, very less limit is there on data now. We have most of the times on Wi-Fi, we have unlimited data nowadays. And then is the respect time. That's very valuable for us. That is that we have to respect the time that we are spending on these tools. Just wait. Hello? Ajit? That's what we talk about. So the next we have to focus on now what are the etiquettes we have to follow on the social media. So etiquettes to be followed on the social media. So yes, Shriya, थोड़ी करना इसको रीडिंग, आप रीड करना क्या है? Social media etiquettes. In the current digital era, we are familiar with different kinds of social media, and we may have an account on Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, or YouTube channel. Social media websites or applications that enable their users to participate in social networking by creating and sharing content with others in the community. These platforms encourage users to share their thoughts and experiences
through posts or pictures. In this way, users can interact with other online users of those social media apps or channels. This is why the impact and outreach of social media has grown exponentially. It has begun to shape the outcome of politics, business, culture, education, and more. In social media, too, there are certain etiquettes which we need to follow as shown in figure 6.4. So, first, the emphasis there on the social media. And now, what points we have to basically consider while when we are on these social medias? So the point is, first is be secure. So how we can be secure? By using the password wisely. So presently what we do that we keep the single password for all the websites, so that we should avoid. Then is know who you befriend. So nowadays we are now looking at the Facebook and other tools, and we are now chatting with other persons and making our groups the bigger one. So that's we have to be very careful on these points. Clear? When we are basically increasing our circle or like that. The point number third is the beware of the fake information. So authenticity is a big sort of a challenge on the social media. Okay? So because no, when we are having a sources of news, like we go through the government channel or so on, so they are very authentic, and these sort of tools are sometimes are not authentic. कोई भी video अपनी post कर देगा, and sometimes we find that that is a fake video is there, or something like that is there. Clear? जैसे I find many of the news channel, वो they propagate the things in a very different way. वो रोज ही 3-4 शिप्स दिखा के बोल देते हैं कि चाइना अटैक कर रहा है, फिर ये अटैक कर रहा है, फिर ईरान ने ये कर दिया और वो कर दिया. सो वो तो ऐसे अपना चैनल ही ऐसे चलाई जा रहे हैं. सो दैट इज दे बेसिकली थिंग्स मेक्स थिंग्स वेरी सॉर्ट ऑफ हाइपर. ठीक है? सो सिमिलरली you see on the Facebook also and other social media are there. So there are, it's very basically जैसे इंडिया के अंदर काफी ये लास्ट ईयर से चल रहा है फेक न्यूज का. So how to basically authenticate the news? So that is also a big challenge nowadays. Clear? So there is a challenge that people are basically are not. We don't have a such a way that where we check the 100% genuinity of the news. ठीक है? तो ये भी एक आजकल that's a sort of a big challenge is there nowadays. So how to be so there are basically 2 more points are there on the right side. You can see, never arrange to meet an online friend because it may not be safe. So we should be now we are too much into the sort of a virtual world nowadays. Clear? तो ये आज जो in the present era we are living in. So and also due to the COVID also, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया. एक तो हमारे पास सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया, दूसरा हमारे पास कोविड का थ्रेट हो गया कि हमें घर पे रहना है. So people are basically now using these tools to make friends and so on. So a lot of basically ambiguity is also there sometimes. The second point is, no matter how genuine someone is appearing online, they might be pretending and hiding their real identity. और ये आजकल जैसे है, ये फेक वीडियो फेक आईडी बना लेते हैं, and then they ask for money also. Clear? उसने बोल दिया कि मैं नवदीप हूँ and I am in very crisis, so please send me 10,000 रुपये. या ये एक बार तो मेरा एक स्टूडेंट भी था, he was from कश्मीर. उन्होंने बोला कि सर कश्मीर में बाढ़ आई हुई है, तो उसने एक अकाउंट नंबर दे दिया एंड प्लीज डिपॉजिट द मनी इन दिस अकाउंट. अब मेरे को क्या पता कौन है. सो वी कैन नॉट लाइक जेन्युइन है बंदा कहाँ से है. सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नाउअडेज यू विल फाइंड. इसकी जेन्युइनिटी को चेक करना इज अ बिग सॉर्ट ऑफ ए चैलेंज. क्लियर? सो व्हेन यू विल ग्रेजुअली मूविंग इनटू दिस सिनेरियो ना, देन यू विल फेस, जैसे आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो तो तब आपको नेट बैंकिंग के अंदर पता चलेगा कि किस तरह की आपको डिफिकल्टी आ सकती है. ठीक है? जैसे कोई ट्रांजैक्शन है, अगर कोई ट्रांजैक्शन आपकी प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हुई तो हाउ टू बेसिकली चेक दी बैलेंसेस, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उसको परस्यू कैसे करना है. ठीक है? सो जैसे अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने एटीएम वाले अकाउंट में अगर एटीएम से पैसे बाहर नहीं आए तो
देयर इज ए, वैसे तो 3 दिन के अंदर 95% ऑफ दी ट्रांजैक्शंस आर रिजॉल्व्ड इन 3 days, वो ऑटोमेटिकली आपके पैसे वापस आ जाते हैं. But if that amount doesn't come to your account, so there is a proper procedure that you have to write an application to the bank, and then the bank proceeds for that. जैसे आजकल और एड्स भी आती हैं, दैट इज नाउ द आरबीआई, एंड अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, यू हैव टू रिपोर्ट टू द आरबीआई इन जितना आप मिनिमम टाइम लेंगे, सो द चांसेस ऑफ रिकवरी आर इवन हाई. आप कोई भी आजकल ऐप यूज करोगे, किसी बैंक की ऐप यूज करोगे, तो वो नीचे उन्होंने लिखा होता है कि दिस इज अवर कस्टमर केयर नंबर टू बेसिकली कॉल इन ए फ्रॉड, और अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाता है या आपको कोई डिफिकल्टी है, सो यू कैन टॉक, बिकॉज दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग इन ए बिग वे. एंड वी हैव टू आल्सो बी अवेयर कि इसकी हमने अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो उसको रिजोल्व कैसे करना है. इट्स नॉट द केस कि किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी लाइफ में. क्लियर, वी हैव टू नो द चेक एंड बैलेंसेस. इफ ऑनलाइन कुछ भी हमारे पास एक्टिविटी हो रही है, कोई नेट बैंकिंग में कोई गलत ट्रांजैक्शन हुई है, तो कैसे उसको रिजोल्व भी कैसे करना है. सो देयर इज ए प्रॉपर मैकेनिज्म इज देयर इन ऑल द इंस्टीट्यूशन, एंड वी हैव टू बी अवेयर फॉर दिस. सो इन चीजों के लिए अवेयर होना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यस वंशिका, नेक्स्ट पॉइंट, बी सिक्योर. Be secure. Choose password wisely. It is vital for social network users. News of breaching or leakages of user data from social network often attracts headlines. Users should be wary of such possibilities and must know how to safeguard themselves and their accounts. The minimum one can do is to have a strong and frequently changed password. Never share personal credentials like username and password with others. Know who you befriend. Social networks usually encourage connecting with users, making friends, sometimes even those whom we do not know or have not met. However, we need to be careful while befriending unknown people, as their intentions possibly could be malicious and unsafe. Beware and fake information. Fake news messages and posts are common in social networks. As a user, we should be aware of them. With experience, we should be able to figure out whether a news message or post is genuine or fake. Thus, we should not blindly believe in everything that we come across on such platforms. We should apply our knowledge and experience to validate such news, messages, or posts. Yes. So that's very vital. These are the points with regard to the security. The first point here is that is news of breaching or leakage of user data. ये आजकल this is a big problem nowadays. Leakage of user data. कभी किसी ने सुना इसके बारे में anything about the leakage of user data? जैसे फेसबुक का यूजर डाटा जो है that has been leaked, or Twitter accounts data has been leaked, or any other social media platforms data is leaked. तो ये न्यूज सुनी है कभी आप लोगों ने? ठीक है, because the data is nowadays very very vital for all the organizations. Yes, Vanshika. यस सर, थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी कि ऑनलाइन साइट से इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली गई है. बेसिकली ऑनलाइन साइट से तो है ये. बेसिकली मेजर जो है, जैसे फेसबुक का डाटा है, अब फेसबुक के डाटा से हर किसी को ईमेल आईडी मिल जाएगी, क्लियर, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, फोन नंबर वगैरह भी मिल जाएंगे. सो वो बेसिकली टारगेट करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को जहां पे बहुत ज्यादा डाटा है. फेसबुक है, ठीक है, फिर ट्विटर हो गया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से. सो द डाटा लीकेज इज नाउडेज ए बिग प्रॉब्लम, क्लियर. So government also says that we are enhancing the rules in such a way that we can basically minimize the data leakages. But these things are going to happen in the days to come. Now 100% protection is not possible. Clear? So this is the first point. The second point is we have already discussed how to be careful while making friends online. So that's the point of caution is there. And also that is nowadays about the fake news is there, clear. If you look at the in India also, if you look at the reporting of the private channels and the government channel, a lot of differences there. And also with regard to the news, so authenticity of the news and fake news is also propagating in a big way because of the social media. Facebook के ऊपर कोई डाल देगा कि यहाँ पे ये हो गया, इवेंट हो गया, but no one knows whether
कि ये जेन्युइन है या एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या है. सो पीपल मेक रिपोर्टिंग ऑन देयर ओन. सो दैट इज द सोशल मीडिया इज आल्सो स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ फेक न्यूज. Now the next point is be reliable. So think carefully before you sharing the personal photos. So we have discussed yesterday also this point in a big way, that whenever we are uploading anything, we are sharing anything, we have to be very much careful. We should not basically share our family photographs also on these public platforms. Clear? They float different types of competitions, but we should not basically unnecessarily go and share our vital information on these platforms. Clear? So basically till now we have discussed just the general points that I think nowadays these points are very very important and prevalent. ये तो subject के point of view से है, वैसे हमारी personal life से भी they are very much associated, that we should not basically over indulge in these medias. चलो जहां पे आपको लगता है थोड़ा आपको requirement है, you should make use of these things, but only requirement के according अगर हम इनको use करेंगे, so then I think it's the better thing. अगर हम बिना requirement के इन चीजों में indulge करेंगे, so then we will also get into the harmful effects of this social media. The next point here is the data protection. Again, very very important point. So in this digital age, the data or the information protection is mainly about privacy of data stored digitally. ठीक है, आप देखो कि जैसे nowadays what we see, आपको फोन आ जाएगा कि that is a lot of information is now revealed कि आप शेयर, जो बंदा इंटरनेट शेयर ट्रेडिंग करता होगा उसको फोन आ जाएगा कि आप हमारे यहाँ अकाउंट खुलवा लो, आप शेयर ट्रेडिंग, हम आपको नई कंपनीज के बारे में बताएंगे, तो दे विल बी मल्टी बैगर और लाइक दैट. तो बिकॉज ये होता क्या है, जैसे आप +2 करोगे तो बहुत सारे फोन आ जाएंगे, क्लियर, कि हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाओ या ये है द इंफॉर्मेशन. हाउ दैट हैपेंस बेसिकली, जैसे होता क्या है कि जैसे व्हेन एवर यू गो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वहां पे वो डाटा जो उनके पास पहुंच जाता है, जो MBA के लिए एंट्रेंस टेस्ट में जा रहे हैं या बीटेक के लिए जा रहे हैं या नीट के लिए जा रहे हैं, कोई भी आप टेस्ट देते हो तो वो डाटा उनके पास पहुंच जाता है, और वो डाटा पता नहीं चलता कब कहाँ पे पहुंच जाता है वो डाटा. क्लियर? so many companies they start calling on these lines. क्लियर? जैसे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो फोन करेंगे कि आप यहाँ एडमिशन ले लो, आपकी इतनी परसेंटेज है, लाइक. So this is how they basically use the information. Yes, वीर प्रताप. सर मुझे टांडा से मैसेज आया था कि हमारे यहाँ पर ट्यूशन रख लो. हाँ जी, टांडा से मैसेज आया था हमारे यहाँ पर ट्यूशन रख लो. अच्छा, तो तूने रख लिया या नहीं? तो टांडा पे कहाँ जाना मैंने? हाँ जी, टांडा कहाँ जाना मैंने? हाँ ठीक है ठीक है. तो किसी के पास पहुंच गया होगा ना फोन नंबर, दैट इज बेसिकली ये कॉलिंग. आपको पता है कॉलिंग कितने तरह, एक कोल्ड कॉलिंग होती है. किसी को पता है व्हाट इज कोल्ड कॉलिंग? इज देयर कोल्ड कॉलिंग का मतलब है कि आपके पास फोन नंबर आ गया, आपको नहीं पता कि वो पर्सन क्या करता है क्या नहीं करता है. जैसे मेरे को पता है एक स्टूडेंट था हमारा, तो ही बेसिकली ज्वाइंड है, वो उसने एक प्रॉपर्टी वाली कंपनी को ज्वाइन किया, उसने वो ट्रेनिंग पे था, तो कंपनी ने उसको दे दिया कि आप रोज 100 फोन रोज आपने 100 कॉल्स करनी है, उसको दे दिया 20,000 का डाटा दे दिया कि आप रोज कॉल करते रहो. अब कॉल में क्या है, फोन नंबर मिल गया मेरे को, जैसे उसने मेरे को कॉल कर दिया या किसी को भी कॉल कर दिया, भव्या को कॉल कर दिया कि आप ये प्रॉपर्टी ले लो, ये ले लो. अब उसको प्रॉपर्टी से क्या लेने देना, जो दूसरा पर्सन है वो उसको गालियां देगा जाके कि ये आप मेरे को क्यों फोन करी जा रहे हो आप. तो दैट इज कॉल्ड द कोल्ड कॉलिंग. आपको पता नहीं है दूसरा बंदे को उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं है. जैसे अगर मेरे पास स्टूडेंट डाटा मिल जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि दैट यू शुड कम फॉर ट्यूशन, यू शुड कम फॉर दीज थिंग्स. बट जिसका पता ही नहीं है ये किसका फोन नंबर है, ये कोई एग्रीकल्चर में है या कहाँ पे है, वो पता ही नहीं है. क्लियर? सो समटाइम्स लोग क्या है फॉर्म के अंदर गलत फोन नंबर भी फिल कर देते हैं, दैट आई वाज डिप्यूटेड ऑन अ टेलीफोनिक सेल समटाइम्स. क्लियर? तो उसमें क्या है कि वो पर्सन क्या है, वो SSP ऑफिस में लग गया है फोन जाके, तो हमने तो एडमिशन के लिए बोलना है कि आप यहाँ पे आगे एडमिशन ले लो. अब हमें क्या पता है, जो बंदे लोग फोन नंबर फिल करते हैं ना वो भी बड़े चालाक होते हैं, किसी और का फोन नंबर फिल कर देते हैं वहां पे, लो भाई ले जाओ हमसे. So people are very intelligent. So like these are the issues that comes in the practical scenario. ठीक है जी. So now here we are focusing on the digital protection.
So in this digital age, the data protection is mainly about privacy of the data stored digitally. Clear? So we are more concerned of this sort of data that is stored in the digital form, and we are concerned with its security. Elements of data can cause substantial harm, embarrassment also, inconvenience also, unfairness also to an individual. If breached or compromised, it is called sensitive data. So basically मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, that is there is one of our student who is basically there in Indore, basically placed in a company. तो उनके पास है उनके clients, they have a lot of clients in Singapore. अब सिंगापुर के क्लाइंट्स और इंडियन क्लाइंट्स में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ. अगर सिंगापुर के क्लाइंट्स को अगर आपने उसके पर्सनल टाइम में फोन कर लिया ना, आप उनको 9 to 5 कॉलिंग कर सकते हो इन देयर वर्किंग आवर्स. वर्किंग आवर खत्म हो गया, आपने उनको फोन कॉल कर दिया, सो दे कैन बेसिकली आपके पास आपके अगेंस्ट लीगल केस भी कर सकते हैं. इंडिया के अंदर तो कोई ऐसा भी सिनारियो नहीं है, दैट इज यू कैन आप कभी भी किसी को डिस्टर्ब करते रहो. मैं एक्सिस बैंक से बोल रहा हूँ और आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए. अब क्रेडिट कार्ड भैया मेरे को नहीं चाहिए, नहीं सर आपके नाम से इशू हो गया है, ये आपके फोन पे मैसेज आएगा, आप ले लो. सो उनको पता है इसका अकाउंट नंबर है, यहाँ पे वो डेली कॉल करते रहेंगे. कभी एक पर्सन करेगा, कभी दूसरा करेगा, कभी तीसरा बंदा करेगा, फिर चौथा करेगा, फिर बंदा 5वें दिन बोलता है जब दे ही दो मेरे को क्रेडिट कार्ड, चाहे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी. अब क्रेडिट कार्ड आने के बाद दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई. दैट इज आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ. पहले मेरे को एक्सिस बैंक से फोन आता था, क्रेडिट कार्ड ले लो ले लो, 10-20 फोन आ गए मेरे को. 21वें फोन में मैंने बोला चलो भेज दो भाई, ये लो नंबर और मेरे को भेज दो. अब मेरे को वो आ रहा है कि सर आपने एक्टिवेट नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, आपके पास पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, क्या हुआ उसका. अब 20 फोन उसके आ रहे हैं. सो मैंने सोचा था कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, वो 20 फोन और आई जा रहे हैं. So like you see here, these things doesn't happen in a basically if you go जैसे सिंगापुर वगैरह जो डिफरेंट अदर कंट्रीज हैं मोर डेवलप्ड देन इंडिया, तो वहां पे आप किसी की पब्लिक लाइफ में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि जब मर्जी आप फोन कर दो. ठीक है, जब मर्जी फोन कर दो, आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया है, आपको ये मिल गया है, वो मिल गया है, तो भैया बस करो, मिल गया है मेरे को सेंड कर दो, खत्म करो उस बात को. अब समझाएंगे कि आप इतनी ट्रांजेक्शन करनी है, इतनी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको ये फ्री मिलेगा. So that is, we should not basically disturb our customers. So we have to be basically, we are not into a culture where how we have to use these things in a proper way are basically now are set into way. So clear, I think that's enough for the day. So next we will focus on this point, data protection, and my humble request is there, please go through the text of this chapter. क्लियर, क्योंकि जब हमारा पास कंसेप्ट बिल्ड होगा कि ये किस कंसेप्ट के बारे में हमारे पास सोसाइटल इम्पैक्ट है, सो देन बिकॉज नो गिविंग ए आंसर इज ए वेरी सॉर्ट ऑफ ए ABCD में कंफ्यूजन होगा वहां पे जाके. क्लियर, सो वी हैव टू बी वेरी मच, इसमें तो थ्योरी है सारी, तो आप थ्योरी को पढ़ेंगे हम एक दो बार, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, MCQ बेस्ड क्वेश्चन. अभी जो हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई बड़ा क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अभी CBSE ने बोला है, एक महीना पहले बोला है, अभी डिफरेंट पब्लिशर्स विल बी वर्किंग ऑन देयर वेज दैट मोर एंड मोर MCQs विल बी प्रोवाइडेड. बट पाइथन के केस में तो हमें इतनी लिबर्टी है, पाइथन और MySQL के केस में, दैट a lot of online quizzes are available. आप गूगल पे सर्च करो एंड यू विल फाइंड ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवर देयर, और थोड़ा वहां पे अपनी थोड़ी टेस्टिंग जरूर करते रहो अपने आप. क्लियर, और जब भी आपको कोई मेजर कोई आपको क्वेश्चन लगता है, दैट क्वेश्चन इज चैलेंजिंग, मे बी चैलेंजिंग फॉर माई सेल्फ आल्सो, बट ये है कि अगर आप इसको क्लास में डिस्कस करेंगे तो वो हम सभी को बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, तो आपको कोई भी MCQ क्वेश्चन मिलता है, दैट इज यू फाइंड इट इज देयर इन आवर सिलेबस सॉर्ट ऑफ ए थिंग. ना भी सिलेबस में हो, एक बार उसको डिस्कस करेंगे. सो एवरीवन, देखो ये फर्स्ट ईयर है, इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है कि ये वाले MCQ आने हैं, ऐसे आने हैं. तो जितना हम मिलके काम करेंगे, क्लियर, everyone can contribute. आपके पास भी कोई 4-5 क्वेश्चन का सेट मिलता है, यू कैन शेयर विद मी. क्लियर, सो अगर मेरे को लगेगा कि वाइटल है, वी कैन डिस्कस इट इन द क्लास आल्सो, बिकॉज अभी हमारे पास कोई ऐसे बैंक अवेलेबल नहीं है जहां से हम बोलो कि हमने ये 20 क्वेश्चन टेस्ट कर लिए, ये 20 क्वेश्चन और टेस्ट कर लिए. क्लियर, सो एवरीवन शुड बी अलर्ट एंड व्हाटएवर यू लर्न. और पाइथन के केस में ये है कि पाइथन को आप थोड़ा करते, देखो MySQL में बहुत ज्यादा, एक तो MySQL जो है हमारा वो टर्म 2 में है, और उसका सिलेबस भी इतना है कि दैट इज वी कैन इजीली रिवाइज. अब हमारे पास चैलेंज आएगा
कि हम डिफरेंट टेबल्स के ऊपर जो क्वेरीज आती हैं उनको टेस्ट करें। वो भी टेस्टिंग जो है दैट यू कैन डू इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट जो पाइथन का सिलेबस है वो ज्यादा वास्ट है, उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी जो है दैट कैन बी मच मोर बिगर। तो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था इस सारी डिस्कशन का कि पाइथन की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो आप, चाहे आप वीकेंड पे 2-4 क्वेश्चन एक टॉपिक उठा लो, सीरीज का उठा लिया, 2-4 प्रोग्राम करके देख लिए उसके, एंड प्लीज बी जेल्ड विद द कोड, कोडिंग जरूर करते रहो, ठीक है? तभी आपको पता लगेगा इस कोड का आंसर क्या होता है, ये कोड कैसे काम करता है, एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर इन ए प्रॉपर वे इन द एग्जाम आल्सो, ठीक है? तो पाइथन की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो आप करते रहो, बिकॉज मेरे पास तो बहुत टाइम होता है पाइथन को बेसिकली रिवाइज करने का, तो आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करते रहो। कोई आपकी साइड से कोई क्वेश्चन है? एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन यू हैव? ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि एमसीक्यू के केस में वी विल फेस द डिफिकल्टी दिस टाइम, और क्योंकि इसकी हमें कोई प्रैक्टिस तो मिलेगी नहीं कि दो हमारे पहले जो हम अपना होमवर्क कर लेंगे वही है। सीबीएसई की तरफ से तो सीधा एग्जाम हो जाएगा वहां पे जाके, ठीक है? 90 क्वेश्चन विल बी देयर ऑन एमसीक्यू बेस्ड, और नो दी कोविड सिनारियो ये तो है नहीं कि 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं होगा, क्लियर? एंड देयर आर चांसेस कि अगर उन्होंने बोला कि अगर सिनारियो ठीक नहीं हुआ तो सेकंड टर्म को भी वो एमसीक्यू में थ्योरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर सिनारियो बिकम्स नॉर्मल, अदरवाइज दैट विल बी आल्सो एमसीक्यू बेस्ड। ओके बेटा, सो थैंक यू वेरी मच। सो ऑन मंडे जो आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कि कौन सी ऑनलाइन क्लास है और कौन सी ऑफलाइन। ऑफलाइन तो स्कूल में ही हो जाएगी, ऑफलाइन ऑनलाइन विल बी देयर। टाइम टेबल मिल गया आपको ऑनलाइन का भी? अभी नहीं मिला ना आपको? तो कोई नहीं, वो तो आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा टाइम टेबल। सो देयर विल बी ऑनलाइन क्लास आल्सो दोज हु आर स्टडीइंग फ्रॉम होम, एंड ऑफलाइन क्लास दोज स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इनटू द स्कूल। थैंक यू बेटा। Thank you, sir. Thank you.